What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 27th of Jan, and while Indian markets enjoyed a long holiday, the commodities markets, especially the global commodities markets, witnessed one of the highest seen volatilities. Silver not only breached the $100 mark, but within 2 sessions, silver surged up 20% and also crashed by 15%. So this was probably one of the highest seen volatilities, and the divergence between the COMEX prices and the Shanghai silver prices kept on widening. And when people saw almost $120 mark on silver, everybody lost the sleep, especially people who were short on silver, especially in the Indian exchange. But fortunately for them, on Monday, silver prices crashed a bit, so that kind of gave them a breather. But nonetheless, most of the ETFs opened 6 to 7% higher than the close on Friday. And today, Nifty opened flat, but it was kind of an anxious opening because आज Nifty की monthly expiry है ahead of a very major event, and then we were also anticipating one of the biggest announcements of the year, that is the India-EU trade deal. And third, Nifty was at the verge of breaking down 25,000 round number crucial levels. The straddle, which closed at 220 on Friday, I was expecting a 160 close. Straddle, though it opened at 170, within the first minute itself, the straddle spiked back to 220 levels, and वहां पे एक significant amount of time तक, almost 15-20 minutes तक hover कर रहा था. And after that, the straddle kept on decaying, but with a rampant delta moves. So people who saw 200 plus straddle on Nifty after a really long time, they were very happy because they were getting some juicy premiums to short, but their happiness didn't last long because markets ऊपर नीचे continuously chop करता रहा. With 200 rupees straddle premiums, the markets today gave a total swing of more than 1,000 points. So throughout the day, there were massive gamma moves while the straddle continued to decay, but this was some sort of an option writer's nightmare. It was a pure option buyer's paradise today, and option buyers काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे, scalpers काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे, but both the option writers and the momentum traders, they would have lost massively today, and this behavior was quite expected considering the fact that this is a monthly expiry. So tomorrow is a 1DT on Sensex ahead of Sensex monthly expiry, and let's get to the terminal and let's see क्या trade opportunities बन सकता है. All right, daily chart पे अगेन काफी ज्यादा एक वाइड रेंज कैंडल बन चुका है. ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट्स का एक वाइड रेंज कैंडल बना है, एंड लुक्स लाइक द मार्केट इज फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रेंज शिफ्ट जो हुआ है. पहले जो मार्केट था 25,800 से लेके 26,300 के बीच एक 500 पॉइंट 600 पॉइंट्स के रेंज में फंसा हुआ था. नाउ दैट रेंज इज काइंड ऑफ शिफ्टेड टुवर्ड्स अनदर 500 पॉइंट्स टू द डाउन साइड. सो 24,900 से लेके 25,600 25,500 के आसपास एक 600 पॉइंट्स के रेंज में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है. वन थिंग टू नोटिस इज दैट जो 3 दिन के पहले का जो लो था, जहां से एक शार्प स्पाइक देखने को मिला था, एक शार्प इंपल्सिव बाइंग आया था, एक डिमांड आया था, उस लेवल अभी तक टूटा नहीं है. इवन टुडे व्हेन द मार्केट्स ब्रोक 25,000 लेवल्स विद अ शार्प स्पाइक इन इंट्राडे वॉलेटिलिटी एज वेल, इवन देन द 24,900 लेवल्स गॉट हेल्ड, एंड टुवर्ड्स द एंड द मार्केट गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग. सो देखना पड़ेगा कि बजट के बाद मार्केट्स किस डायरेक्शन पकड़ेगा एंड रेंज शिफ्ट कहां पे हो सकता है, बिकॉज 2 चीजें हैं, एक इस तरफ का रेंज शिफ्ट हो सकता है या एक नीचे की तरफ रेंज शिफ्ट हो सकता है. मैं ज्यादा एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में देखने को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन पॉइंट्स है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव बॉट एट दीज लेवल्स. सो यहाँ पे मैक्सिमम जो है मोस्ट प्रोबेबली एक रेंज शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आके फिर से एक और बार एक छोटा सा एक 300-400 पॉइंट्स का सेल ऑफ आने के बाद मार्केट से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा अगर जाना है तो. बट कंसिडरिंग द फैक्ट ऑन हाउ द कमोडिटीज आर बिहेविंग, हाउ द क्रूड ऑयल प्राइसेस आर बिहेविंग, हाउ डॉलर इंडेक्स इज बिहेविंग, आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक. एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट अगर बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा तो देन एक रेंज शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन एक ही झटके में जो ब्रेकआउट होने वाला है उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है. मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोल रहा हूं, बट थोड़ा प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, राइट. बट एट द सेम टाइम वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट आ रहा है. अनलेस दिस लेवल इज टेकन आउट, आई थिंक 25,000 शुड बी डिफेंडेड. तो सारा जो एक्शन हो रहा है वो इंट्राडे में ही हो रहा है, एंड इफ यू कैन नोटिस व्हाट काइंड ऑफ अ वोलेटाइल डे टुडे वाज. तो मार्केट्स ने थोड़ा फ्लैट ही ओपन हुआ, एंड वी हैड अ ओवरनाइट न्यूज, राइट. ओवरनाइट हमारा जो इंडिया और ईयू का जो FTA
एफटीए जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो था वो आज अनाउंस होने वाला था एंड इट वाज काइंड ऑफ अ डन डील, बट मार्केट्स ने वो चीज ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इवन ऑन सोशल मीडिया वर एक्सपेक्टिंग अ बिग गैप अप 300 400 इवन 500 पॉइंट्स का भी गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट टू एवरीवन सरप्राइज मार्केट्स ओपन प्रेटी फ्लैट एंड जो कल का लो है विद इन द फर्स्ट मिनट मार्केट ने तोड़ दिया एंड ऑलमोस्ट इस लो के आसपास आया एंड हमने डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो वहां से मार्केट अगेन अ शार्प अपमूव, ऑलमोस्ट एक 300 पॉइंट्स का अपमूव देखने को मिला, ऑलमोस्ट 24,900 से लेके 25,200 तक एंड वहां से फिर से 200 पॉइंट का डाउन मूव, 200 पॉइंट का अपमूव, अनदर 200 पॉइंट का डाउन मूव एंड टुवर्ड्स द एंड अनदर 200 पॉइंट का अपमूव, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक स्विंग देखने को मिला है विथ 200 पॉइंट स्ट्रैडल, राइट। अगर आप स्ट्रैडल की बात करें तो अगर स्ट्रैडल को देखेंगे तो लोगों को लगा होगा कि अरे इतना आसान दिन कैसे मिल सकता है, लाइक स्ट्रैडल ट्रेडर्स के लिए या ट्रायंगल ट्रेडर्स के लिए या ऑप्शन राइटर्स के लिए काफी अच्छा दिन रहा होगा बिकॉज ऑलमोस्ट 200 के आसपास स्ट्रैडल था और इन द मॉर्निंग एंड 200 का स्ट्रैडल हो, स्पेशली 25,100 25,150 का स्ट्रैडल ऑलमोस्ट लगता है कि लाइक लीनियर डीके दे दिया होगा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द मार्केट्स कॉन्स्टेंटली चॉप्ड द ट्रेडर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। यस, वंस द मार्केट्स ब्रोक द यस्टरडेज लो इन द फर्स्ट टिक इटसेल्फ जो 190 से लेके इमीडिएटली 220 के आसपास स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा था, बट आफ्टर दैट द स्ट्रैडल डीकेड विथ अ लॉट ऑफ डेल्टा मूव्स in both the directions. Tomorrow is Sensex 1DT ahead of the Sensex monthly expiry and straddle prices, of course, they are much better than what we are used to over the last couple of months. But again, the markets are proving that VRP अभी भी negative है. What is VRP? Volatility risk premium या variance risk premium वो negative ही है. इसका मतलब क्या है? Straddle जितना trade कर रहा है उससे ज्यादा ही markets का movement है. For example, आज Straddle 200 रुपए पे trade कर रहा था, which is much higher than whatever we have seen over the last 4-5-6 months, right? हमको 80 रुपीज पे स्ट्रैडल ओपन देखने को मिलता था ऑन सेंसेक्स एक्सपायरी, समटाइम्स इवन 70 रुपीज ओपन देखने को मिला है, बट टुडे वी वर ट्रेडिंग एट 220 एट वन पॉइंट, मॉर्निंग ही 220 का स्ट्रैडल था, बट देन इन स्पाइट ऑफ 220 रुपीज स्ट्रैडल द ट्रेडर्स कुडंट मेक एनी मनी, स्पेशली शॉर्ट गामा और डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स कुछ पैसे नहीं बना पाए बिकॉज मार्केट्स का जो मूव्स है वो इट वाज मच हायर कंपेयर टू रिलेटिव टू द स्ट्रैडल प्राइसेस, इवन इफ दो द implied volatility is high, the realized volatility is much higher than what the premiums are implying. So again tomorrow, though the premiums look attractive, I don't think we should be trying to short the walls or trying to short the gamma. Basically delta neutral trade nahi karni chahiye. We have to wait for the markets to come to our levels and then plan some or the other forms of trades, right? तो अगर price action की बात करें तो you can notice that markets ने आज काफी अच्छा एक support दिया है and also एक higher high higher low pattern form करते आ रहा है. You can notice morning में markets ने एक low मारा and before this low was even approached, the initiative buyers came and took the markets higher, and next time towards the end of the day also this high is higher than this and this high is higher than this. So एक structure बना है and at the same time markets have given a very strong close. So depending upon where we're gonna open, हमारा जो trade है वो differ करने वाला है. Again कल के लिए ये जो level है ये एक लोकल मैक्सिमा बनने वाला है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मल्टीपल टच पॉइंट्स के साथ मार्केट्स ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया एंड उसके बाद एक गैप अप के बाद भी मार्केट्स उसी जगह से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट्स वापस आया है. सो इवन इफ द मार्केट गैप्स अप एंड इफ यू पुल टुवर्ड्स 80 to 800 लेवल, सो दिस स्पाइक कैन बी फेडेड. मतलब क्या है, यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड्स ले सकता है, बट अगेन एज आई ऑलवेज से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप और एम काइंड ऑफ अ पैटर्न और सम सॉर्ट ऑफ अ रेड एनगल्फिंग कैंडल और सम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विडिटी स्वीप ऑन दी ऑप्शन चेन. इन तीनों पैटर्न्स को वेट करो, बट ये लेवल इट गिव्स अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन फॉर अ शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी. बट अगेन यहाँ पे अगर ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन डोंट ट्राई टू गो लॉन्ग बिकॉज ऑलरेडी आज मार्केट लो से काफी अच्छा, ऑलमोस्ट एक सेंसेक्स के टर्म्स पे बात करें तो ऑलमोस्ट एक 1000 पॉइंट्स का एक अपमूव दे चुका है. तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके यहाँ पे आता है एंड आपका स्टॉप लॉस जाता है तो बेसिकली आपको एक री एंट्री लेना पड़ेगा, बट नॉट स्टॉप एंड रिवर्स काइंड ऑफ अ ट्रेड. बट अगर मार्केट इधर इसके आसपास 500-600 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुल जाता है, देन वेट फॉर द इंट्राडे प्राइस एक्शन. यहाँ पे वेट करो, मार्केट को कितना दूर होगा देखो. जहां पे मार्केट एक पैटर्न दिखाएगा, लाइक जनरली एक
रिवर्सल पैटर्न होता है वहीं से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मार्केट 80 to 300, 80 to 200 के आसपास गैप अप होगा एंड इंट्राडे में एक 500 पॉइंट का एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, देन वेट फॉर द एम पैटर्न्स हियर और सम सॉर्ट ऑफ अ एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न हियर एंड देन वी कैन गो शॉर्ट ऑन द मार्केट्स विथ दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ टारगेट। ऑलराइट, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देन अगेन थोड़ा सिचुएशन ट्रिकी हो जाता है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल अहेड ऑफ द इंडिया EU trade deal and ahead of this level properly like getting demand from, so people have gone long, तो वो लोग थोड़ा फंस जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट्स अगेन ये लेवल कहीं ना कहीं टच करने वाला है अगर मार्केट गैप डाउन खुला। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर वापस रेंज के अंदर आ जाएगा देन बेसिकली डोंट ट्राई टू गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स, जनरली शॉर्ट के लिए ही वेट करो। तो अगर मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास आ जाता है इंट्राडे में, देन एनी पुल बैक टुवर्ड्स दिस लेवल 80 to 100 और 80 to 200 दैट बिकम्स अ हाई प्रोबेबिलिटी जोन टू एक्चुअली शॉर्ट द मार्केट्स। तो इन सिनेरियोज के अलावा मैं ज्यादा पिकी नहीं होने वाला हूं, आई मीन ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढने वाला हूं। आई विल बी वेरी पिकी। अगर जो ट्रेड्स मेरे लेवल्स के आसपास आएंगे, मेरे लाइकिंग के आएंगे, देन ओनली आई विल ट्रेड, और एल्स लाइक देयर इज नो हार्म इन लेटिंग द मार्केट्स लेट देम अलोन, बिकॉज अभी 2 या 3 दिन के अंदर बजट है, संडे को बजट है। सो मार्केट्स काफी वोलेटाइल होने वाला है, मार्केट्स सब लोगों को ट्रैप करने वाला है, वॉलेटिलिटी पैटर्न भी चेंज होने वाला है, रेंज एक्सपेंशन होने वाला है। सो इफ यू गेट फॉर एग्जाम्पल जैसे आज, तो आज एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास दैट टू विद अ शार्प कैंडल आ गया एंड वहां से एक वापस शार्प रिवर्सल भी आ गया। यहाँ पे दोनों चीजें मिल रहे थे, यहाँ पे ऑप्शंस भी स्पाइक हो गए थे एंड यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी मिल गया था एंड यहाँ पे दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो ऐसे ट्रेड्स अगर थाली में अगर मिलता है देन ओनली वी शुड बी टेकिंग दोस ट्रेड्स अहेड ऑफ बजट, वरना बजट के बाद लेट द मार्केट्स establish some sort of a fresh price action। मार्केट्स में जो impulsive buyers and impulsive sellers है उन लोगों को पूरा ट्रैप होने के बाद once the market starts moving freshly after getting light then we can start trading as per the price action। बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मेरे लिए 2 ही सिनेरियोस है। अगर फ्लैट खुल के या इवन थोड़ा बहुत गैप अप खुल के मार्केट इंट्राडे में 500 पॉइंट्स अगर ट्रैवल करता है तो देन यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर मार्केट फर्स्ट 5 या 10 मिनट्स के अंदर इस रेंज के अंदर आ जाएगा एंड अगर इंट्राडे में वापस यहाँ पे बनेगा एंड देन यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न हमको दिखेगा, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स एनी ऑफ दीज ट्रेड्स एंड मेरे लिए दो द एक्सपायरी वॉज डिफिकल्ट, आई मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन अराउंड 0.25% ग्रीन में क्लोज किया हूं मैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका एक्सपायरी कैसा रहा, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, and let me know in the comments because I do read your comments. I'll see you again after tomorrow's market action. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.